वेल कमीने दो जुड़वा भाइयों की अमर कहानी है। एक फ को फ बोलता है और दूसरा हकलाता है। मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी फ़िल्म है, बहुत अलग फ़िल्म है जो मैंने पहले किया है उससे। एक तरफ चार्ली की कहानी है, जैसा मैंने कहा, जो फ को फ बोलता है, मतलब वो स नहीं कह सकता, वो स को फ कहता है। और दूसरी तरफ गुड्डू और स्वीटी है। गुड्डू बेचारा बहुत ही शरीफ भोला सा है, और वो और स्वीटी एक दूसरे, जो प्रियंका का कैरेक्टर है, गुड्डू और स्वीटी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उनकी ज़िंदगी में कैसे प्रियंका के बड़े भाई जो हैं भोपे भाऊ, जिनका रोल अमोल गुप्ते प्ले कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है उस शादी से, तो इनकी लाइफ में कैसे परेशानी चल रही है और चार्ली की लाइफ में कैसे परेशानी चल रही है। आई थिंक 1 या 2 दिन की कहानी, कैसे ये दोनों भाई अपनी अपनी परेशानियों में, और दोनों भाई को मतलब जमकर नफरत है एक दूसरे से, बहुत नफरत करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते एक दूसरे को, कैसे ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं, एंड हाउ दे हैव टू सॉल्व देयर लाइव्स विच हैव समवेयर जहाँ पर क्रॉस कनेक्शन हो गया। तो इन अ फ्यू वर्ड्स, ये कमीने की कहानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी फ़िल्म है, बहुत अलग फ़िल्म है, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल परफॉर्मेंस है ये। पहली बार मैंने एक डबल रोल किया है। आई थिंक पहली बार मैंने इतनी अलग चीज़ की है। So yes, there are a lot of firsts in this film, and I'm really looking forward to see how the audience reacts to it. Stammering is definitely tougher, because stammering is also a psychological problem. In fact, we met quite a few doctors. We met some people who have stammering problems also to try and understand what happens. But yes, definitely more difficult to communicate stammering on screen. Lisping is a little easier, but yeah, stammering is very difficult because both me and Vishal were very keen that we don't make a caricature out of the characters. We wanted them to come across very real and believable. And so yes, we were very clear that we wanted to present both these brothers differently from what people have seen me in the past. Especially Charlie's character, who is the rawer, the edgier one out of the two. So Vishal definitely wanted me to look different. That's why my hair was much longer. I'd grown a stubble. I had a more tanned look in the film. There was a lot of work that went into the body. For about a year I worked in my body because there was obviously this one running shot with the horses, which I had to do my shirt on. So yeah, worked for a year for that. So it was a challenge to achieve a completely different look and surprise the audiences. And it took a lot of work. Apart from that, like I said, because there were speech defects, there was a lot of background study that we had to do to try and make it look as authentic as possible. Well, I don't think either of them are complete without each other. The beauty is that because it's a double role, the beauty is that you see the contrast between the two, and so both of them together are for me Kaminey. Without one of them, I think Kaminey would be in. Yes, Vishal and me had met. In fact, prior to Omkara, me and Vishal had met, and we were keen to do something together. Unfortunately, we couldn't work it out. I have seen all of Vishal's work with my father. I think him and Dad have done some brilliant work together. I think in Maqbool, Dad's performance is probably one of the best performances I've seen in Indian cinema. So yes, I was somebody who had really admired his work, what he had done with my dad also, and I was really happy when we got this opportunity to work together, and he gave me probably the most difficult role of my career yet, and totally different from what I've done in the past, and very fortunate that he thought I would be able to do it, and I hope I've been able to do it well. There's this once where well, Priyanka is very proud of the fact that she can ride scooties very well. Unfortunately, she cannot ride them during the rainy season, which is what got proven by doing this one shot where she was on a scooty and mashallah, I was right behind her. मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला था कि तू पीछे बैठ, तू हैंड पैक्ड है, लड़की जो है वो सब कुछ करती है, तू चुपचाप पीछे बैठा रहता है। तो मुझे पीछे बैठना पड़ा और उसने चलाई और हम दोनों हो गया हमारा। आई थिंक दोनों बहुत मुश्किल है यार, बट आई थिंक गुड्डू का कैरेक्टर मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम है वो उसको कन्विंसिंगली करना बहुत मुश्किल। कमीना कौन है, वो तो पिक्चर देखो यार, सब कमीने हैं पिक्चर। ओमकारा बहुत अलग फिल्म थी यार, ये बहुत अलग फिल्म है। ओमकारा में सबका काम बहुत अच्छा था, सैफ का काम भी बहुत अच्छा था, और आई होप इस फिल्म में लोगों को मेरा काम पसंद आए। अलग सी रिकग्निशन का तो पता नहीं, बट रिकग्निशन मिल जाए बस, आई विल बी हैप्पी। लोगों को मेरा काम अच्छा लगे। फिल्म अलग है, मेरे जितनी भी मेरी ऑडियंसेस हैं जिन्होंने मेरी लव स्टोरीज़ देखी हैं, मुझे रोमांटिक फिल्मों में देखा है,
आई होप कि वो इस बात से खुश हों कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और आके एक मौका दें, मेरी फिल्म देखें, एंड आई होप दैट दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. कोशिश हमने बहुत की है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म दैट वी मेड. आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. यार मैंने कभी कोई इमेज बनाने की कोशिश नहीं की. अब हुआ ऐसा है कि सारी मेरी लव स्टोरीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं. ये मेरे लिए पहली बहुत हटके फिल्म है, तो बिल्कुल मेरे लिए एक्साइटमेंट भी है और एक एंटिसिपेशन भी है जानने का कि ऑडियंसेस कैसे रिएक्ट करेंगी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर दिन अगर दाल चावल खिलाया जाएगा तो मैं बोर हो जाऊँ, है ना. वही प्लेट में, वही कटोरी में मैं रोज़ दाल चावल खाऊँ. एक दिन मुझे सब्ज़ी मिल जाए, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये सब्ज़ी बोलूँगा, कोई और होता तो चिकन बोलता, मटन बोलता. तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर मैं रोज़ ऑडियंस को एक ही चीज़ करके दिखाऊँ तो शायद वो लोग बोर हो जाएंगे. हो सकता है कुछ एक्टर्स वो करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बोर हो जाऊँ. तो मैं ज़रूर वो करना चाहूँगा जो ऑडियंस मुझे देखना चाहती है जिस एरिया में, बट उसके साथ साथ कभी कभी कुछ नया करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा, हमेशा करूँगा. एंड आई होप दैट द ऑडियंसेस विल लाइक दैट. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.